The aim of this experiment is to study the effect of addition of salt on critical solution temperature of phenol water system. This is an experiment that you have done in your lower classes. Now I'll just remind you what you have done. So what you did was you took a beaker. I don't know, tell me if you remember this. In this you fill up water. Okay, this is water. Then you take a hard glass test tube. Hard glass test tube has, now this has three things. This has a thermometer. I don't know, thermometer was kept outside or inside, I don't know. I think inside, na? Inside, sir, हाँ, along with stirrer. हाँ. Then you have a stirrer here, correct? ऐसा स्टरर में ऐसा नीचे ऐसा एक गोल था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. आपने एसओआई में क्या किया मैं आपको बताता हूँ. आपने ये पानी तो सेम रहता है. यू टेक different amounts of varying amounts of water and phenol. So basically what you do is you make a table like this. You take pani, water like this, and you take phenol, and you take different combinations of their concentrations. You did this, remember? अभी याद आया कुछ? Yes, उसके बाद sir. आप क्या करते हैं, यहां से आप इसको हीट करते हैं. And at lower temperature what you see is that these two liquids they form two different layers. So you'll have a water layer and you'll have a phenol layer, and if you mix it with the stirrer you get a milky solution. याद आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. और आप जब उसको हीट करेंगे at a particular temperature this solution becomes clear, and that is the temperature you're going to measure. याद आया अभी? जी सर. जी sir. तो आप यही करने वाले, देखिए. तो this is a very easy experiment, that's why we have done this. Let's see. All right, so if you see this first table is actually what you have already done in your lower classes. आपने क्या किए, 10 ml 10 ग्राम फिनॉल लिए, या आपने 9.5 ml लिए, उसमें 6 ग्राम पानी डाला. 6 ग्राम इज नथिंग बट 6 ml of water. So basically you are talking about in terms of ml. Water has a density of 1, so gram is equal to ml. So you have 10 grams of phenol, 6 grams of water. You can calculate the percentage. Percentage कैसे निकालेंगे? This will be 10 divided by 10 plus 6 into 100. निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? What will be this value? 6 divided by 10 plus 6 into 100. 6 divided by 16 into 100. ये वैल्यू कैसे निकलेगा? How will I calculate this number? 10 divided by 18 multiplied by 100. 10 multiplied by 18 divided by 100, and this number will be 8 divided by 18 into 100. This will be 10 divided by 22 into 100, so this will be 12 divided by 22 into 100, and likewise. ये भर जाएगा आपका. Technically what you should do is you should measure two temperatures. एक टेम्परेचर जिसमें आपका लिक्विड क्लियर होता है, राइट? उसके बाद अगर क्लियर हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, रुके रहेंगे, एंड जैसे ठंडा होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर आपका जो क्लियर सॉल्यूशन था अचानक क्लाउडी होना शुरू हो जाएगा. सो बेसिकली यू हैव टू मेजर टू टेम्परेचर्स. आपने एसवाई में कैसे किए थे? दोनों किए थे कि सिर्फ एक ही किए थे?
दोनों किए थे सर। आपने दोनों किए थे, ठीक है, लेकिन हम लोग जी टीओआई में क्या करेंगे, टीओआई में हम लोग एक ही करेंगे, डिसअपियर करेंगे, बिकॉज आगे का भी और एक एक्सपेरिमेंट करना है। एसवाई में दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट वाज फॉर 3 आवर्स, तो आप दोनों कर सकते थे। अभी इन टीवाई बीएससी दिस इज जस्ट वन हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, सो दैट्स वाई इसको, और स्पेशली ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, सो दैट्स वाई वी विल नॉट डू दिस एक्सपेरिमेंट। सो आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे मिसिबिलिटी टेम्परेचर करके आप लोग ये सब हटाओ, यहाँ पे सिर्फ एक टेम्परेचर डाल दो, एक कॉलम, राइट, मिसिबिलिटी टेम्परेचर, एंड यू विल पुट 111 वैल्यू। आया समझ में? इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. तो अभी उसके बाद मैं ये बाद में जाता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखा है कि परसेंटेज फिनॉल कैसे निकालना है, आप निकाल सकते हो। नाउ यू हैव परसेंटेज फिनॉल एंड मिसिबिलिटी टेम्परेचर। अभी मैंने आपकी कौन से किस किस के साथ किया, पानी और, अभी आपने फिनॉल। पानी और फिनॉल का। सो यू विल सी दैट नाउ योर एक्स एक्सिस इज परसेंटेज ऑफ फिनॉल एंड दिस इज योर टेम्परेचर। आप देखेंगे कि जैसे परसेंटेज ऑफ फिनॉल बढ़ता है, टेम्परेचर जो है जिसमें वो आपका क्लियर होता है, इट इंक्रीजेस समथिंग लाइक दिस, इट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, एंड देन इट डिक्रीजेस, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। आप इसको अगर जोड़ेंगे, सो यू विल हैव, नाउ you will have a graph something like this. अभी तक समझ में है? यस Then सर। what you will do is, जहां पे आपका ग्राफ हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, over there you will draw a line parallel to x-axis and you will draw a line parallel to y-axis. This temperature is called CST. So you will say that the critical solution temperature of water phenol is, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर है, लेट्स सपोज, लेट्स अज्यूम ये 60 है, 60 नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं जस्ट तुम लोग को एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एंड लेट्स से दिस 60 डिग्री, एंड लेट्स से दिस इज एट 40 डिग्रीज। तो आप रिजल्ट में क्या रिपोर्ट करेंगे, द क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर ऑफ, ये सिस्टम क्या था, वाटर फिनॉल सिस्टम। phenol water system is 60 degree at the composition of 40% phenol. Yeah, is this clear till now? जी सर। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सेकेंड पार्ट में आप क्या करेंगे, पहले में अगर आपको याद है तो आपने पानी और क्या लिया था, फिनॉल। फिनॉल। दूसरे पार्ट में आप पानी लेने की जगह पे यू विल टेक KCl सॉल्यूशन। नाउ KCl सॉल्यूशन का मतलब है, ध्यान रखो, यू हैव मेजॉरिटी इज वाटर एंड you have some amount of KCl. Again you will measure the percentage वगैरह जो भी है, and you will calculate the different temperatures at which it disappears. And let's now assume this time that the points, similar points that you get is something like this. ये भी पहले बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है। ये कौन सा सिस्टम का है, ये फिनॉल एंड केसीएल। फिनॉल वाटर, फिनॉल वाटर प्लस सॉल्ट, राइट, फिनॉल वाटर और प्लस सॉल्ट है ना। केसीएल यानी क्या है, केसीएल आपने किस में बनाया, पानी में ना। जी सर। सो मेजोरिटी आपको जो है फिनॉल है, वाटर है, और उसमें कुछ सॉल्ट है, और नीचे वाला जो है ये कौन से इसका है, फिनॉल वाटर। तो ये ऊपर वाले सिस्टम का आप CST कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। सर सिमिलर मैनर में हाईएस्ट पॉइंट लेके। हाईएस्ट पॉइंट से आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे,
यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, आप बोलेंगे कि द क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर ऑफ फिनॉल वाटर सिस्टम इज, लेट्स से ये 60 है, तो ये अगर 70 है तो मैं बोलूंगा कि इट इज 70 डिग्रीज एट अ क्रिटिकल कंपोजिशन ऑफ, लेट्स से 50% ऑफ वॉट एवर। इज दिस क्लियर? तो अभी आप बताओ, सॉल्ट डालने की वजह से क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर को पे क्या असर पड़ा? बढ़ गया। बढ़ गया। बढ़ गया। बस दैट्स ऑल यू नीड टू डू. So now let me show you the second. देखो, so you have, now instead of taking water, just check here, you're taking 0.1 molar KCl solution, or same, and if you check, values will be exactly same. देखो 10 6, देखो आप लोग देखेंगे तो 10 6, 10 8 सब सेम है. सो एक्चुअली जी आपके ये सर। वैल्यूज भी सेम रहेंगे, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज एग्जैक्टली सेम रहेंगे, बिकॉज परसेंटेज ऑफ फिनॉल एंड परसेंटेज ऑफ वाटर इज द सेम. जस्ट ये है कि यहाँ पे आपके पास इन दोनों के अलावा कुछ और सॉल्ट आ गया. एंड अगेन यू विल नॉट डू ऑल दिस, यू विल डू ओनली मिसिबिलिटी टेम्परेचर एंड यू विल हैव वन कॉलम. बस उतना सा है. देन यू विल प्लॉट अ ग्राफ एंड यू विल राइट अ, अभी आप रिजल्ट देखो, रिजल्ट आप कैसे डिनोट करेंगे. क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ऑफ फिनॉल वाटर सिस्टम इज दिस मच. अच्छा ये सॉल्ट सिस्टम है. Then critical solution temperature of phenol water system is this much. The increase in the critical solution temperature is this much. And the percentage of phenol at the critical solution temperature is this much. कर सकते हैं आप? Can you do this? Yes, sir. चलो, और किसी को कुछ डाउट है?